if you want to know how the mass is distributed in the body, it is near to the axis of rotation or away from the axis of rotation. So we have to learn the new term called radius of gyration. Gyration means rotation, and gyrate means to rotate. So there are some instruments called gyroscope fitted in the ships and aeroplanes for the directions and all. So here this term is gyration. Its symbol is K, similar to the spring constant. K is the symbol used for various physical quantities. One of them is this radius of gyration. Suppose we want to know the radius of gyration of this disk, whose mass is m and moment of inertia is I. So how do we define the radius of gyration of this body or any body? The radius of gyration is the distance from the axis of point mass. Distance of the axis, this is the axis of rotation, from the point mass, which is equal to mass of the body, such that moment of inertia of this point mass is same as that of the body, about same axis. तो ये कोई बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी होती है, उसका रेडियस ऑफ gyration निकलना है. तो क्या करना है, इस बॉडी को कॉम्प्रेस करके सिंगल पॉइंट मास बना के उसी एक्सिस से उतनी डिस्टेंस पर रखो, सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए जो उस बॉडी का पहले था उस सेम एक्सिस से. देन दिस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मास from the axis will be called K, radius of gyration. So this is the definition given in your textbook. It is the distance from the axis of point mass whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the whole body about the axis. Two things: mass should be same and moment of inertia should be same, जो whole body का है. Then you have to change the distance because whole body में mass distribution is right from the axis. और इसमें जो है थोड़ा, इसमें point mass है, distance from the axis. So you have to change, you will get different values than the radius of the, whatever the radius is there. K may be different, may be same. Ring के case में mass distribution is on the circumference. तो K may be same. तो but यहाँ पे definition में कोई doubt है. It is the distance from the axis of the point mass whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of whole body about the same axis. Two things should be there. Mass whole body, mass जो है point mass का same होना चाहिए जो body का है. Moment of inertia same होना चाहिए जो body का है. और axis भी same होना चाहिए. Three things. Then जो distance होगी, that will be the radius of gyration of that particular body about that axis. है ना. और पॉइंट मास के लिए हमने क्या सीखा है, m इंटू आर स्क्वायर. पॉइंट मास के लिए क्या होता है, mr स्क्वायर. यहाँ पे लेकिन r का सिंबल हमने k दे दिया है, यहाँ पे r की जगह k लिख दिया है. तो पॉइंट मास के लिए वी नो m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. तो यहाँ से k मिल जाएगा, m को इधर भेज दो, रूट ले लो, i बाय m. तो रेडियस ऑफ gyration ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अपॉन टोटल मास ऑफ दैट बॉडी. है ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम और बॉडी अपॉन मोमेंट ऑफ, आई मीन टोटल मास ऑफ द सिस्टम और बॉडी. कई पार्टिकल्स हो सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो सकता है, या सिंगल बॉडी भी तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही होती है ना. तो नीचे टोटल मास लिखना है. कभी कभी हम टोटल मास लिखना पॉइंट मासेस में एक आध मास मिस कर देते हैं. क्यों मिस करते हैं, क्योंकि उससे एक्सेस पास होके जाता है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो काउंट नहीं होता, पर टोटल मास में तो काउंट होगा ना वो. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट, अगर तुमने यहाँ से भी डिफाइन कर दिया, रेडियस ऑफ gyration इज अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ gyration. ये भी चलेगा, बट दिस इज द डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन. पॉइंट मास को यहाँ नहीं रखना है, यहाँ पे रखेंगे तो जीरो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जबकि कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए. इसको शिफ्ट करना पड़ेगा इधर. इतनी डिस्टेंस तक लेके जाओ कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेम हो जो ओरिजिनल बॉडी का हो जाए.
गॉट इट? रेडियस ऑफ gyration का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो निकालना है तो ये फार्मूला लगा दो, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस से निकाल लो, मास से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करो, एक्सप्लेनेशन के लिए ये पॉइंट है। बोलो, क्लियर? यस नोट सर। कर लो, फिर कैलकुलेट करके देखते हैं एक केस का। जैसे ये फाइंड k of the disk, radius of gyration of the disk about axis, about center of mass and perpendicular to the plane of the disk। यही केस हो गया, समझ में ना? ये डायग्राम होगा, डिस्क की बात कर रहे थे, ये डिस्क की है, इसका इसके खुद की एक्सिस से रेडियस ऑफ gyration निकालना है। तो खुद इसका जो एक्सिस होता है, मेन एक्सिस, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो, मास से डिवाइड कर दो, ठीक है? जो इट फॉर दिस I is equal to हाफ mr स्क्वायर, ठीक है? देयरफॉर फार्मूला यूज करेंगे, I is equal to root of k is equal to root of I by m. We'll put the value of I. तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर डिवाइड बाय इस मास, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2, दैट विल बी r by root 2। गॉट इट? एक्सिस अगर चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। बोलेंगे डायमीटर से निकालो, डायमीटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 1/4। तो यहाँ पर फिर नीचे 4 होगा तो रूट से बाहर निकल के डायमीटर से r/2 आ जाएगा। रिंग का कितना आएगा? ओन एक्सिस से रिंग का कितना आएगा? रिंग का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? mr स्क्वायर होता है, mm कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगा, रिंग का r आ जाएगा। क्यों? रिंग का k एंड r दोनों सेम क्यों होते हैं? क्योंकि रिंग में मास जो सर्कमफ्रेंस पे होता है, तो तुम्हें इधर उधर करनी, रिंग जैसे है ना, रिंग का पूरा मास सर्कमफ्रेंस पे ही होता है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, मास को उतनी डिस्टेंस पे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे मास सर्कमफ्रेंस पर है। रिंग में r एंड k सेम होते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ रिंग ऑल द मासेस आर एट सर्कमफ्रेंस ओनली, तो सेम आएगा, k विल बी अंडर रूट ऑफ mr स्क्वायर अपॉन r, mm कैंसिल, सॉरी, r आ जाएगा। तो रिंग एक ऐसी बॉडी है जिसका k एंड r इक्वल होते हैं, बाकी में नहीं होते। और रिंग एक ऐसी बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर है। रिंग ऐसे होता है, बॉडी यहाँ पे है, रिंग सेंटर ऑफ मास बीच में, बॉडी के अंदर नहीं है। बॉडी रिंग की कहाँ है? सर्कमफ्रेंस पे ही रहती है, सेंटर ऑफ मास बाहर है। बाहर मतलब बॉडी पे नहीं है, अंदर ही है वैसे तो, बट इट इज नॉट इन द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिंग का, है ना? तो रिंग का, और सॉलिड स्फीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5, तो r इंटू रूट 2/5 आ जाएगा। हॉलो स्फीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/3 होता है, तो r इंटू रूट 2/3 आ जाएगा रेडियस ऑफ gyration, जो मेन 5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने जो डिस्कस किए। और उसका कितना होता है रॉड का? रॉड का है कितना होता है? 1/12 ml स्क्वायर, नीचे mm कैंसिल, l बाहर आ जाएगा, l/√12 आ जाएगा रॉड का रेडियस ऑफ gyration, ठीक है? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोफिशिएंट है ना, वो रूट के अंदर रह जाता है, बाकी तो स्क्वायर होते हैं टर्म, वो रूट के बाहर आ जाते हैं। ऑलराइट, इसका कैलकुलेट करके दिखाओ, चलो रीड दिस एंड डू इट। देखो जी, 4 पार्टिकल सिस्टम है,
इसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे इसका, 4 पार्टिकल सिस्टम का? कौन सा एक्सिस से दिया, एक्स एक्सिस से निकालना है। तो ये एक्स एक्सिस ये है, तो ये इस पॉइंट मास से जरिए इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इन दोनों का कितना हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 1। देखो कितना आ रहा है, फटाफट सॉल्व करके बताओ, फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें आंसर। बोलो कितना है फटाफट। स्पीड थोड़ी फास्ट रखा करो तो तुम्हें एडवांटेज रहेगा फिर। तो देखो इसका कितना है, इसका तो 0 हो गया ना, फर्स्ट का, इसका भी 0 हो गया। इन दोनों का एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 ही रहेगा। मास भी 1 है, रेडियस डिस्टेंस भी 1 है ना। मास भी 1, डिस्टेंस भी 1, तो 1 + 1 2 ऐसा यूनिट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन टोटल मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2 आया, टोटल मास 1 kg + 1 kg + 1 kg 4 kg हो गया। तो ये आएगा 1/2 1/√2, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है कि भाई हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 का 0 हो गया, तो मास भी छोड़ देते, उसको मास नहीं छोड़ना है ना। रेडियस ऑफ जाइरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर, डिस्टेंस है ये, मीटर होगी। अरे देयर, यस सर। क्या यूनिट होगी, मीटर होगी उसकी। और सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो, नीचे वाला समझ में आ रहा है। तो थोड़ा इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, समझ में नहीं आता है एक बार में। जस्ट गो थ्रू, देन आई विल शो यू द सॉल्यूशन। अपने आप करने की कोशिश करो, देन आई विल शो यू। Radius of gyration of the body about an axis at a distance 0.12 meter from its center of mass is 0.13। मतलब एक्स जो पैरेलल एक्सिस है उससे 0.13 दिया है, और डिस्टेंस भी दिया है a। फाइंड द रेडियस ऑफ gyration अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है उससे निकालना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं लगा के। तो के ओ, रेडियस ऑफ gyration जो है ओ पॉइंट से दिया है ना, ओ क्या, पैरेलल, ओ जो होता है पैरेलल एक्सिस वाला पॉइंट होता है बाहर का, उससे ओ ले लिया, के ओ ले लिया। सेंटर ऑफ मास से केसी ले लिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख दी। और इसमें m इंटू के स्क्वायर लिखेंगे, आईसी में m इंटू के सी स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे m a स्क्वायर, m तो कैंसिल हो गया, और ये के, ओके, हमें a चाहिए, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना। सपोज ये बॉडी है ना, और ये सपोज कोई रॉड है, कोई भी बॉडी ले लो, ऐसे कोई बॉडी है, ठीक है। तो ये उसका सी है, सेंटर ऑफ मास है, और ये ओ है, पैरेलल एक्सिस है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस a होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा था मैंने, ये डिस्टेंस a होता है, वो निकालना है। तो के ओ तुम्हें दिया हुआ 0.13, के सी भी दिया था, नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, देखो वैल्यू पुट करने में मिस्टेक हुई, देखो
के ओ दिया हुआ है कितना 0.13 दिया है, 0.13 का स्क्वायर IC KC निकालना है हमें। ए दिया हुआ है 0.12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे KC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये इफ यू सॉल्व इट 0. कितना आएगा 0.5 0.0025 0.025 आएगा कि 5 आएगा। देखो ये कितना हो गया 13 का स्क्वायर 0.13 का 0.0169 और ये 0.0144 है ना, कितना आ रहा देखो 0.0025 अच्छा 0.0144 ठीक है, माइनस कर दे रहा है, ये कितना आएगा 5 और ये 2 अच्छा 0.0025 मीटर है ना। अभी अंडर रूट भी लेना पड़ेगा ना इसका, अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, तो देयरफॉर KC विल बी 0.05 मीटर। ठीक है, ऑलराइट सर। ओके, तो ये रेडियस ऑफ डायरेक्शन के बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। ये थोड़ा मैं पीछे जाना चाहता हूँ, पिछले चैप्टर में एक दो अच्छे क्वेश्चंस हैं पावर के, वर्क पावर एनर्जी के, पावर का और वर्क डन का। ये मैं तुम्हें आई वांट टू गिव यू नाउ, इसको अपने आप करके देखो, यू जस्ट ट्राई टू डू योरसेल्फ, यू विल एंजॉय डूइंग दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा रिवाइज भी कर लो पीछे, है ना। particle of mass m is moving in the circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration AC is varying with the time t as this relation where k is constant, the power delivered to the particle by the force acting on it is given by, power ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। Can anybody tell me how to do this question? पावर का फार्मूला याद है? वर्क अपॉन टाइम। और दूसरा पावर मतलब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर होती है, तो तुमने बताया ना। फोर्स इनटू वेलोसिटी। एक मिनट, just screen has gone, just let me bring it back. Whatever you told me, that one was the average power, और यहाँ पे average power लिखा है नहीं, it is the power means instantaneous power. फोर्स इनटू वेलोसिटी Okay, इंस्टेंटेनियस। instantaneous, तो then और further फिर force into force कहाँ से लाएंगे और velocity कहाँ से लाएंगे बोलो। सर सेंट्रीपेटल फोर्स पूरे उसका और टेंजेंशियल वेलोसिटी शायद, हाँ वही होगा शायद। करके देखेंगे इसको, यू विल ट्राई योर ओन। क्वेश्चन का नोट कर लो, ट्राई करो, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हमें बेसिक पॉइंट्स नहीं पता है तो इट इज वेरी देन डिफिकल्ट टू डू दिस क्वेश्चन, तो रिवाइज द थिंग्स, ट्राई टू डू इट, है ना। इट इज गुड क्वेश्चन फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। नोट कर लो, ठीक है। विल नॉट ज्वाइन बैक अगेन, अभी जितनी देर क्लास चलेगा 40 मिनट्स का, विल नॉट ज्वाइन बैक बिकॉज अटेंडेंस इज लो, we'll have only one session today. Noted. But centripetal force तो power produce ही नहीं करता है ना। You told centripetal force. You know dot power का जो formula होता है F dot V होता है। तो centripetal force and velocity, तो ये F V cos theta आएगा, ये तो 90 डिग्री पर रहेंगे, तो centripetal force तो power produce ही नहीं करता है।
फिर अच्छा, इसका आंसर 0 दिया है क्या? तो चेक करो अच्छे से इसको, जस्ट रिवाइज द थिंग्स, इज इट 0 और नॉन 0, जस्ट टू explain me in the next class. All right. Noted? Yes, sir. ऐसे देखो, एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है ये। इसमें एक्सटेंडेड बॉडी है ना, तो सेंटर ऑफ मास ले लेंगे इसमें हम। वर्क डन के लिए वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, बट फोर्स कहाँ पे लेंगे? सेंटर ऑफ मास पे लेंगे, है ना। जैसे ये टेबल है, यूनिफॉर्म चेन, यूनिफॉर्म वर्ड इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ mass m is lying on the smooth table and 1/3 of the length is hanging vertically, 1/3 hang कर रहा है over the edge of the table. If g the acceleration due to gravity, work done to pull the hanging part on the table, 1/3 hang कर रहा है ना, तो ऐसे चेन है, 1/3 is hanging, two-third is on the table, 1/3 is hanging है ना। तो मास, इसका सेंटर ऑफ मास तो 1/6 पर होगा, फिर सेंटर मास ऊपर से L/6 होगा, और हैंगिंग पार्ट का मास M/3 होगा, है? तो वर्क डन इज mgh, वर्क डन इज, ऊपर खींचना है उसको, m डैश g इंटू h डैश, तो 1/3 हैंग कर रहा है, M/3 g, और सेंटर मास कितने, L/6 पर है, तो mg L/18। 18. ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा जो है, अच्छा nth पार्ट इज हैंगिंग है ना, nth पार्ट इज हैंगिंग, तो m/n ले लेंगे, फिर यहाँ पर m/n हो जाएगा, जनरलाइज कर दें इसको, m/n, और लेंथ जो है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, फिर वो कितना होगा nth पार्ट में, L/n, L/2n. उसके बाद 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, L/2n, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा, n के टर्म्स में आ जाएगा जनरल फार्मूला, फिर उसमें n3 पुट कर देना, तो इसके साथ मैच हो जाएगा। तो बट ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, यू कैन डू इट देयर इटसेल्फ, इसको ऐसा कुछ, ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर 2 पॉइंट्स, एक ही पॉइंट लेना, मास हैंगिंग तो वो तो आ गया, M/3 1/3 है, उसी को ऊपर पूरा खींच के लाना है, लेकिन उसका सेंटर मास, कुछ पार्ट तो जल्दी आ जाएगा, कुछ पार्ट लास्ट में आएगा, तो एवरेज उसका कितना है, L/6 खींचना है तुम्हें ऊपर, ऐसे खींचना है, फ्रिक्शन तो है नहीं, वर्क डन mgh ही करना पड़ेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। गॉट इट? तो Yes, ये sir. 2 क्वेश्चन पिछले चैप्टर के थे, अच्छे क्वेश्चन, तो आई जस्ट रिटन, वी मिस दैट। नाउ काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, है ना। फिक्स एक्सिस के अबाउट, जैसे हमने सर्को मोशन पढ़ा था, तो रोटेशनल मोशन इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्को मोशन, तो सर्को मोशन के सारे फार्मूले यहाँ भी लग जाएंगे, वही कौन कौन से फार्मूले पढ़े थे सर्को मोशन में, v इक्वल टू ओमेगा r पढ़ा था, है ना। अल्फा क्या होता है, d ओमेगा बाई dt होता है। काइनेमेटिक इक्वेशन, अभी काइनेमेटिक इक्वेशन इन रोटेशनल मोशन इंक्लूडिंग सर्कुलर मोशन में भी लगेंगे विद कांस्टेंट अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है। तो जैसे हमने पढ़ा था काइनेमेटिक इक्वेशन इन द ट्रांसलेशन मोशन और लीनियर मोशन विद कांस्टेंट ए पढ़ा था, तो ये इक्वेशन थी, इसका इक्विवेलेंट बता सकते क्या, रोटेशनल मोशन में इसकी इक्विवेलेंट क्या आएगा बोलो, v का इक्विवेलेंट ओमेगा 2 आ जाएगा, u का ओमेगा 1 आ जाएगा, a का इक्विवेलेंट क्या होगा, अल्फा, AC. टाइम का इक्विवेलेंट अच्छा. टाइम, अल्फा, अल्फा चेंज करता है उसकी एंगुलर स्पीड को, ठीक है, सेंटीमीटर एक्सेशन नहीं, अल्फा विल चेंज द एंगुलर स्पीड बिकॉज अल्फा इज d ओमेगा बाई dt, है ना।
और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका बोलो, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आसानी से रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उनके इक्विवेलेंट फार्मूले, हमें कुछ डिराइव करने की जरूरत नहीं है इसको। ऑलराइट, और कभी कभी बोलते हैं नंबर ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड बाय रोटेटिंग बॉडीज निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? कैन यू जस्ट गेस? कोई सपोज तुमने स्विच ऑफ कर दिया फैन, कितने रोटेशन के बाद रुकेगा वो? तो क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, थीटा। तो थीटा निकालने के बाद नंबर ऑफ रोटेशन से हम निकाल सकते हैं। एक रोटेशन में कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएंगे पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो इससे आ जाएंगे, इससे या इससे। 2 पाई से डिवाइड करने से नंबर ऑफ रोटेशन आ जाते हैं। सपोज 10 पाई घूम के रुका वो फैन, जो है स्विच ऑफ करने के बाद 10 पाई रोटेशन कंप्लीट किया उसने। तो 10 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट किया, कितने रोटेशन? 2 पाई से डिवाइड कर दो, 5 रोटेशन कंप्लीट किए उसने। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में एक सॉल्व एग्जांपल है बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस एंड ऑल। तो लेट्स डू दैट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन है, एक मिनट, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक। तो क्या दिया इसमें? द एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 12 to 3120 rpm in 16 seconds. What is the angular acceleration? एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन होना चाहिए, क्योंकि टाइम इंटरवल 16 एवरेज वैल्यू होनी चाहिए। पर ठीक है, यूनिफॉर्म अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन एज्यूम कर देंगे तो वो सेम आता है फिर। हाँ, दिया भी है, एज्यूमिंग दैट एक्सेलेरेशन भी यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज दोनों सेम होंगे, हम निकालेंगे एवरेज इसे डिवाइड करके, वो इंस्टेंटेनियस भी होगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एवरेज वर्ड नहीं किया, पर हमें निकालना एवरेज से ही पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन? ω2 माइनस ω1 अपॉन टी। तो टी भी दिया, ये क्या दिया है? ω2 कौन सा होगा इसमें? ये वाला, ये ω2 है कि कुछ और है? ये फ्रीक्वेंसी है यही है F2। सर, एंगुलर वेलोसिटी तो है, रेवोल्यूशंस पर नहीं, मिनट। हाँ, ये हाँ, पर फ्रीक्वेंसी है, मिनट है। 60 से 60 से 60 डिवाइड का नहीं। करेंगे, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। फिर उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है ओमेगा निकालने के लिए, 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको पहले आरपीएम है, पहले 60 से डिवाइड कर लेंगे, फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ओमेगा बनता है। वो ओमेगा इज 2 पाई एफ। तो ये फ्रीक्वेंसीज दी है, तो उससे हमारा ये पहला पार्ट आ जाएगा। हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द इंजन मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम? तो थीटा निकालना पड़ेगा पहले, है ना, फिर 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, अल्फा मिल जाएगा। तो ω2 इक्वल टू ω1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा निकाल के 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखो, ओके, पहले उन्होंने क्या किया, ओमेगा निकाला पहला इनिशियल, ω1 या ω0। हम लोगों ने ω2 एंड ω1 लिया, इन्होंने ω0 लिया, एक ही बात है। तो 2 पाई इंटू एंगुलर स्पीड इन रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो 60 से डिवाइड कर दो, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ω1 आ गया, ऐसे ω2 आ गया,
इसको 60 डिवाइड करके 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से अल्फा आ गया, अल्फा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/3, ठीक है, अल्फा आ गया। फिर हमने क्या देखा कि हाँ, ये सेकंड इक्वेशन लगा दी, इसकी थीटा आ जाएगा, और थीटा को हमने अगर 2 पाई से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाता है। आज समझ में ये क्वेश्चन, जस्ट यू कैन सी योर टेस्ट अपना। तो मैंने सारे पॉइंट बता दिए थे तुम्हें, होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अर्जुन, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन रिवाइज कर लेना तुम लोग, अगर पॉइंट नहीं ध्यान आ रहा है तो ये क्वेश्चन हमने किए हैं वहां पे, ओमेगा अल्फा निकालने वाले, ये है ना बात। उसके बाद काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के हमने थीटा निकाल लिया, और 2 पाई से डिवाइड करके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकाल दिए। आर यू गेटिंग इट? अरे देयर, तुम लोग हो लाइन पर? हाँ सर, हाँ हाँ सर। तो इसको बहुत जितना जल्दी सीख लोगे ना, तो ये 12th में भी हर चैप्टर में आता रहेगा। ये जब हम एसी पढ़ेंगे वहां पे जनरेटर में ऐसे आता, जनरेटर शाफ्ट रोटेट करती है, फिर हम लोग और भी चैप्टर में डिस्कस करते हैं ये सब पॉइंट। तो जितने जल्दी समझ लेंगे ना, ये याद कर लेंगे, अभी 12th में भी काम आ जाएंगे ये सब। जो आरपीएम दिया होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको 60 से डिवाइड करने हर्ट्ज बन जाती है, वो एफ होती है, या न्यू भी सिंबल यूज करते हैं, एनसीईआरटी बुक में सिंबल न्यू यूज करते हैं, न्यू भी जैसा दिखता है, इसलिए हम लोग एफ यूज करते हैं ना। फिर उसको 2 पाई से, जो एफ मिल गया उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ओमेगा मिलता है। ओमेगा मिल गया तो अल्फा मिल जाएगा, अल्फा मिला तो फिर ये रोटेशनल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा मिल गया तो 2 पाई से डिवाइड करके नंबर ऑफ रोटेशन और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बोल सकते हैं, जो भी बोलो, नंबर ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, रिटेन करते जाओ, जितना हम पढ़ाते ना, तो यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम, और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। फिर जितना पढ़ा दिया उसको याद रखते जाओ। ऑलराइट, कितना टाइम बाकी है देखते हैं, आई डोंट नो, थोड़ा टाइम बाकी होगा। विल कंटिन्यू टिल इट एंड्स। देखो, जैसे हमने ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, है ना, तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। रोटेशन में बॉडी चलती तो है नहीं, जैसे फैन ऑन कर दिया तुमने, और नीचे तो आ नहीं रहा हो, तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, उसमें जीरो है, बट रोटेट कर रहा है ना, तो उसकी वजह से पार्टिकल टर्न कर रहे हैं, तो वो तो मोशन हो रहा है ना उनका, टर्निंग का मोशन तो हो रहा है, रोटेशनल मोशन तो हो रहा है। तो उस मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी, दैट विल बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, और यू कैन कॉल इट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। ये एक्सिस ले लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक पार्टिकल एज्यूम किया यहाँ पर, है ना, एक पार्टिकल को लेके जनरलाइज कर देते हैं उसमें ना। कंसीडर बॉडी रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, है ना, ये फिक्स एक्सिस है। फॉर ए पार्टिकल एम आई, एम आई मीन जनरल, सबको रिप्रेजेंट करेगा, M1 नहीं ले रहे, एम आई ले रहे हैं उसको, एट ए डिस्टेंस आर आई, ये आर आई ले लिया। लीनियर स्पीड कितनी होगी, v इक्वल टू ओमेगा, से हमने लीनियर स्पीड निकाल ली उसकी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। सिंगल पार्टिकल में नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी आएगी, के आई इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, बट v को ओमेगा आर लिख दिया, तो ये आ गया, v को यहाँ से ओमेगा आर पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया आई के टर्म में। उसके बाद क्या किया, फिर जनरलाइज कर दिया उसको, टोटल, ये देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी सभी पार्टिकल्स का समेशन कर दिया। तो समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो पॉइंट मासेस, छोटे छोटे पॉइंट मास है इसके, सब पूरे टोटल होल मिलके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा वो, है ना। तो सारे पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा वो। तो आई है गया, हो गया ये ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन में आई है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशन मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी का इक्विवेलेंट आई, एम का इक्विवेलेंट आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा का वी होता है। तो सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे हमें, आई की जगह, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। नथिंग डिफिकल्ट टू रिमेम्बर दिस रोटेशन मोशन में, बस हाफ आई ओमेगा कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर को चेंज कर दो, एम की जगह आई पुट कर दो, वी की जगह ओमेगा,
हाफ अपनी जगह रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कुछ नहीं। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल्स होगी, है ना। और इस